तेणु P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर एवरेज। तेणु सी स्क्वायर दिस इज द RMS वेलोसिटी, सो सी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3P by रो और C एवरेज implies C average is equal to 3P by rho square root. तापर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर terms of kinetic energy per unit volume। तेणु आम जाने प्रेशर हूँ आम ये रिलेसनटा सब मन रखा पड़ो 1/3 रो सी स्क्वायर एवरेज और दैट इज इक्वल टू गोटे 2 गुणी देवी इंटू हाफ and rho hala mass by volume, so this is 2/3 into half mass by volume c square average, and this is half mc square। आम जाने mass into half into mass into velocity रो square होची kinetic energy, and this is the mass of whole gas, then this is the kinetic energy of the whole gas, then this is equal to 2/3 kinetic energy half mc square average होची kinetic energy of gas divided by volume अच्छी, जेहेतु kinetic energy होची of gas is equal to half mc square average। ताले this is 2/3 तार काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट इज 2/3 E, where E is काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हराई वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम। तेणु द प्रेशर ऑफ द गैस इज 2/3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तेणु प्रेशर ऑफ गैस is 2/3 times the kinetic energy per unit volume of gas। Then I will tell you regarding kinetic interpretation of temperature। I mean, pressure, we know that if pressure is माने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर माने मोशन टेम्परेचर सहित कौन केमती रिलेशन अच्छी वेलोसिटी सेटा आम बाहर करवा। तेणु फ्रॉम वी नो दैट प्रेशर ऑफ ए गैस इज 1/3 रो सी स्क्वायर एवरेज और दैट इज 1/3 रो वाला m/v सी स्क्वायर एवरेज और v टाक एपटे गुणीदे सो दैट गिव्स यू pv product of pressure and volume is equal to 1/3 m c square average।
आम जाने आम गैस इक्वेशन जना अच्छी बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एगुड़ा जना अच्छी तेणु अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन ideal gas equation is for 1 gram mole of gas Pv is equal to R. RT. R है universal gas constant. R is universal gas constant. Pv is equal to RT. Where R is universal माने gas constant. सब समान universal gas constant. ताले आम जान पीवीटा आमर बाहर 1/3 mc स्क्वायर एवरेज पीवी इज इक्वल आरटी 1 ग्राम मोल पे ना एनआरटी होता एनटा 1 तेणु यहाँ हूँ पीवी इज इक्वल आरटी फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस ताले पीवी मूल्य आम लिखिदेबार पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर एवरेज दैट इज इक्वल टू आरटी और C square is equal to C square average is equal to 3 पढ़ेगा सेपट को 3 RT by M और C square is average is 3 और constant R है universal gas constant is a constant mass of the gas is constant then C square is proportional to T temperature absolute temperature this is the absolute temperature in absolute Kelvin scale or C average is proportional to root over of T. This is called kinetic interpretation temperature. Temperature is related to the RMS speed, RMS velocity. हमारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS velocity root mean square velocity of molecules is directly proportional to molecule of gas is directly proportional to square root of absolute temperature. Square root of its absolute temperature. Or temperature in the Kelvin scale. That means when temperature heat is supplied to a system, to a gas, so its temperature will rise. Temperature if it will rise, this RMS velocity will rise. That means when heat is given, its temperature will rise. Temperature when it will rise, the RMS velocity will rise. And this interpretation of temperature in terms of velocity is called kinetic interpretation of temperature. Again, when heat is given, it is supplied. Its temperature rises. Its temperature rises, and hence C average is proportional to root over of T, and RMS velocity of molecule
increases. This interpretation of temperature, this interpretation of temperature in terms of velocity of the molecule is called kinetic interpretation of temperature. And at T is equal to 0, at T is equal to 0, that is absolute 0 temperature. ताले कौन आवा? C is equal to 0, C average is 0. T0 means C average is equal to 0. C average T0 means C average is 0. C average होची कितने? That is square root of C1 square plus C2 square up to Cn square by n. तामने 0 माने कौन? ना C1 0, C2 0, Cn 0 implies कारण जेहेतु एटा एडिशन गुड़ा तेणु 0 हम माने सब गुड़ा इंडिविजुअली 0 हम implies C1 is equal to C2 is equal to Cn is equal to 0. तामने सब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी 0 हो जिवो. All molecular motion vanishes at absolute 0. C0 means all velocities at T0, all velocities of molecules C1, C2, C3, Cn vanishes. रहे नहीं किसी. That means so at absolute 0, molecular motion stops or ceases. बंद हो जाए. तेणु एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर गोटे टेम्परेचर मुझे आगुरी कही फास्ट जो बुझाऊली र्यूमर स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड योर केल्विन स्केल. कही एब्सोल्यूट 0 इज द टेम्परेचर एट व्हिच द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. तो ये आम प्रूव करदे जेहेतु एट एब्सोल्यूट 0 दिस C1, C2, C3, Cn becomes equal to 0. Then kinetic energy for mole of gas बाहर करिए. Mole of gas 1 gram mole. तापरे फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाहर करिया. हम जाने P is equal to 1/3 rho C square average and that is equal to 1/3 rho वाला m by v C square average और PV is equal to B टाइप आटे गुणी देली. That is equal to 1/3 mc square average. And for 1 gram mole of gas, for 1 gram mole of gas, PB is equal to RT. PB is equal to RT.
n ग्राम मोल हेले n मोल हेले pv is equal to nRT, n is equal to 1 लिखा है 1 ग्राम मोल, तेणु दिस इज pv is equal to RT एवं pv है 1/3 mc स्क्वायर ताले pv आम लिखिपर pv is equal to वन बाई थ्री mc square average and pv is equal to RT, तेणु pv is equal to 1/3 mc square average is equal to RT. तेणु mc square है average is equal to 3 RT. अब काइनेटिक एनर्जी होची हाफ mc square हाफ गोटे गुणी देवी दैट इज 3/2 RT एवं एम है मास ऑफ द गैस फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर मोल ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस 3/2 RT. किंतु आम पुणी बाहर करिया काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ गैस गोटे मॉलिक्यूल पाइपर यहाँ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी बाहर कले एवं आम बाहर करिया काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस गोटे मॉलिक्यूल माने जार मास हो स्मॉल m तेणु काइनेटिक एनर्जी हम बाहर करिया हाफ m c स्क्वायर एवरेज स्मॉल m c स्क्वायर एवरेज. तेणु आम ये बाहर करचे हाफ mc स्क्वायर एवरेज इज 3/2 RT. हाफ mc स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3/2 RT. आर है बोल्ट्जमैन आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवं m हूँ टोटल मास ऑफ द गैस जोटा हूँ हाफ इंटू स्मॉल m. इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज द एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m बड़ा m टा हूँ स्मॉल m इंटू n. n इज द एवोगाड्रोस नंबर. ये डिटेल केमिस्ट्री पढ़ा एवोगाड्रोस नंबर. तेणु कैपिटल m टा हूँ टोटल मास ऑफ द गैस हूँ इंडिविजुअल मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आम जाने 1 ग्राम मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तेणु कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n. तेणु m बदले मुझे लिखिली स्मॉल m इंटू n c स्क्वायर एवरेज दैट इज इक्वल टू 3/2 RT. ताले दैट इज इक्वल टू आम n टाक सेपट को नहीं जावा. सो हाफ mc स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3/2 R/n T. Universal gas constant R divided by n Avogadro's number is called as Boltzmann constant. So that is equal to 3/2 small k T, where k is called as Boltzmann constant. Boltzmann is the name of a scientist. Boltzmann's constant ताका नाम अनुसार है जोटा कि रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू डिवाइड बाय रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगाड्रोस नंबर. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रोस नंबर. तेणु गोटे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गोटे मॉलिक्यूल मास होची m स्मॉल m एवं तार एवरेज RMS वेलोसिटी हो c. तेणु काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्मॉल c स्क्वायर एवरेज. किंतु काइनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ गैस होची हाफ ऑफ कैपिटल M इंटू c स्क्वायर एवरेज 3/2 RT. किंतु एटा होची 3/2 KT. k होची बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय स्मॉल k कहंती कापा बिल कहंती. तापर I will tell you regarding what is degrees of freedom.
Degrees of freedom means degrees of freedom is defined as the number of independent coordinates necessary to specify the position of a particle in space. Is defined as the number of independent परस्पर सहित डिपेंडेंट नुहति independent coordinates necessary to specify the position of the particle in space. गोटे पार्टिकल टाको स्पेस रे स्पेसिफाई करिया पे केतेटा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दरकार सेटा कहते डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मनकर व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गोटे बॉलटे गड़े देली एक्स एक्सिस रे गड़ी गड़ी गला तेणु तार पोजिशनटा बॉल पोजिशनटा आम केमती डिफाइन करवा जे ये जगह मनकर एटा ओरिजिन बोली धरिबा ए ओरिजिन रो से केते दूरतार अछि 1 सेकेंड केते दूरतार अछि 2 सेकेंड केते अछि 3 सेकेंड केते अछि तेणु तार कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करिया पई हमकु दरकार मात्र गोटिए कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट तेणु तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होची 1 किंतु जदि गोटे पार्टिकलटा गोटे प्लेन रे मूव करूची प्लेन रे मूव करूची माने से एक्स एक्सिस जाई परियो वाई एक्सिस मध्ये जाई परियो तेणु तार पोजिशनटा को डिफाइन करिया को हेले हमकु दीटा कोऑर्डिनेट दरकार तेणु तार 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अच्छी तेणु व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वन एक्सिस इट्स पोजिशन एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ 1 कोऑर्डिनेट सो इट हैज 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम and when a particle is moving in a plane its position can be determined by 2 coordinates x and y so it has 2 degrees of freedom. Similarly गोटे स्पेस रे मन गोटे प्लेन रे जाउची गोटे आकाश रे गोटे चढ़ई उड़ी जाउची तेणु से चढ़ईटा उड़ी जावाई तार स्पेस रे से जेहेतु मूव करुँची आम स्पेसिफाई करने आम कहवा सी एत एक्स एक्सिस एत दूरतार अच्छी गोटे ओरिजिन कहवा गोटे चूज करवा गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस एवं कहवा एक्स एक्सिस एत दूरतार अच्छी वाई एक्सिस एत दूरतार अच्छी एत डिस्टेंस अच्छी जेड एक्सिस एतिक डिस्टेंस अच्छी तेणु एटार हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नेसेसरी इज 3 सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Similarly, for 2 particle system, it requires 6 coordinates to specify the position of the particle. So it has 6 degrees of freedom. In general, for n particles, degrees of freedom is 3n. Then degrees of freedom sangere madhya depends upon the number of constants. Constants माने restriction अच्छी. तब तुमको 3n coordinates अच्छी 3n कोऑर्डिनेट्स तुम मना कराला ना ये दीटा कोऑर्डिनेट तुम जीवन कि के कोऑर्डिनेट तुम जाई परिबनी तेणु सेटा होची रेस्ट्रिक्शन ताले नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हबो इफ देयर आर n पार्टिकल सिस्टम सो n पार्टिकल पे 3n कोऑर्डिनेट्स आर नेसेसरी एंड k कांस्टेंट्स आर देयर k restrictions are there so number of independent coordinates by number of degrees of freedom is 3n minus k. तापर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस ए मोनोएटॉमिक गैस मोनो मीन्स सिंगल एटम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस
एक रहा मोनो एटॉमिक atom consists of one atom mono. It has only translatory motion. So it has translative माने either x axis जाई परिबो ना y axis जाई परिबो ना z axis रे जाई परिबो तेणु it has 3 degrees of freedom. So it has 3 degrees of freedom. Diatomic hydrogen oxygen एवढा सब diatomic then atom contains 2 diatomic. At low temperature 0 degree to 250 Kelvin. It has low temperature. Molecules has translatory motion. The molecules of gas has only translatory motion. Translatory it can move in x axis or y axis or z axis. Straight line movement. So degrees of freedom is 3. At medium temperature (250 Kelvin to 750 Kelvin) absolute scale. Molecules has translatory as well as rotatory motion. दुईटा मोलेकुल एमती अच्छी आइदर एक्स एक्सिस जाई परिबो वाई एक्सिस जाई परिबो न जेड एक्सिस जाई परिबो एटा ट्रांसलेटिव मोशन ता छड़ा से माने एमती घुरी पारंती क्लॉकवाइज न एंटी क्लॉकवाइज घुरी पारंती तेणु ट्रांसलेटरी मोशन अच्छी ट्रांसलेटरी मोशन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अच्छी ता छड़ा रोटेटरी जो दुईटा एक्सिस है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तेणु 3 + 2 = 5 सो इट हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. थ्री प्लस टू ट्रांसलेटरी रोटेटरी पे 2 आउ ट्रांसलेटरी पे 3 so that is 5 degrees of freedom. And at high temperature 750 above for diatomic gas. So at high temperature that is above 750 Kelvin. So it has both translatory and as well as rotatory and also there is vibratory motion. Vibration करि परिबो. So vibration is 1 ता जोगु एवं ए पांचटा ए जो ट्रांसलेटरी पे 3टा रोटेशन पे 2टा एवं वाइब्रेशन पे 1 तेणु दिस हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो इट हैज ट्रांसलेटरी rotatory and vibratory motion. So it has 3 + 2 + 1, so it has 6 degrees of freedom. 6 degrees of freedom.
तापरे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इक्वु मीन्स इक्वाल पार्टीशन समान भाग में बांटा एनर्जीटा को समान भाग में बांटा जमी तुम मानकर जान तुम घर जदि 5 भाई अच्छ तुम बापा जदि तुम जहाँ जमी बाड़ी अच्छी पैसा पत्र अच्छी जदि 5 भाई की समान भाग न बांटिले ताल कौन हम आफ्टर हिज डेथ सो दे विल क्वारल अमंग ईच अदर बिकॉज दे विल थिंक दैट फादर हैज सम गिवन सम फेवर टू सम ब्रदर तेणु सामान भाव जब बांटी देते ताले भितर किसी कली तकरार ना सो दिस इज ऑल्सो द केस इन केस ऑफ नेचर सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी in any dynamical system means system in motion in any dynamical system in thermal equilibrium माने temperature remains constant in thermal equilibrium प्रथम कही टेम्परेचर रिमेनिंग कन्स्टांट सिस्टम जदि टेम्परेचर दुईटा सिस्टम अच्छी जदि तार टेम्परेचर सामान अच्छी ताले आमे कहवा दे बोथ द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इफ दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज आर सेम इन एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी is equally divided among all degrees of freedom. Degrees of freedom. सबू मॉलिक्यूल जिते एनर्जी अच्छी सबू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे समान भाव में बांटी देले तेणु कई काली को मॉलिक्यूल किसी कली तकरार करेनि एंड एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम is half kT प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी होची हाफ kT where k is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. आम आगु बाहर करचे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस गोटे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी केते काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस कहूँ 3/2 RT के अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल हूँ 3/2 RT KT 3/2 KT तो से फॉर मोनोएटॉमिक गैस देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड काइनेटिक एनर्जी of a molecule of gas is 3/2 kT. K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature. एवं काइनेटिक एनर्जी हमें केमती बाहर करें हाफ m p स्क्वायर बस c स्क्वायर एवरेज जहाँ कहो कह p स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT के कैपिटल के लेख ये छोट के लेख ना स्मॉल के लेख
एवं v रो तीनटा कंपोनेंट अछि vx vy vz तेणु दैट इज इक्वल हाफ m vx स्क्वायर आम कहे v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर तेणु v स्क्वायर इज इक्वल टू आम लिखिदे v स्क्वायर बदल तार तीनटा कंपोनेंट x y z कंपोनेंट vx vy vz सो दैट इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kt स्मॉल k लिखा बड़ा k जा नहीं लिख और दैट इज इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर दैट इज इक्वल 3/2 kt आमर लॉ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहूँ सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रे समान भाव में एनर्जी डिवाइड होती तेणु एक्स एक्सिस रे काइनेटिक एनर्जी केते हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस रे केते हाफ एम वी वाई स्क्वायर जेड एक्सिस रे केते हाफ बी एम वी जेड स्क्वायर तेणु जेहेतु एनर्जी समान भाव में सबू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रे एक्स एक्सिस रे वाई एक्सिस रे जेड एक्सिस रे डिवाइड हो जाइए तेणु हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल हाफ एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल हाफ एम वी जेड स्क्वायर तेणु दिस implies according to law of equipartition of energy half mv square vx square is equal to half of mvy square that is equal to half of mvz square समान तेणु हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एम वी वाई स्क्वायर मध्य एम वी एक्स स्क्वायर एम वी जेड स्क्वायर मध्य एम वी एक्स स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एटा मध्य से हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एटा मध्य हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kt ताले एटा केते हैला हाफ 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 3/2 implies 3/2 m vx square is equal to 3/2 kt or half of m vx square is equal to half kt. अब half m vx square is equal to half m vy square is equal to half m vz square. तेणु half of m vx square is equal to half of m vy square is equal to half m vz square is equal to half of kt. This is the law of equipartition of energy. तेणु प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी होची ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ m हाफ kt. So last time I have told you regarding specific heat. Specific heat आम कही सॉलिड कथा कही सॉलिड बा लिक्विड कथा कही सॉलिड और लिक्विड पे हम कहते स्पेसिफिक हीट होची कौन ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री दैट इज हम कहते Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डी क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डी टी बा सी इज इक्वल टू आम कहते 1/m डी क्यू बाई डी टी. तेणु सॉलिड केस हो लिक्विड केस हो स्पेसिफिक हीट होची एतिकी 1/m इंटू डी क्यू बाई डी टी. इट हैज ओनली वन स्पेसिफिक हीट बट फॉर केस ऑफ गैस दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट.
you can keep this gas volume of the gas constant, then you will find one specific heat. Similarly, keeping pressure of the gas constant, you can get another specific heat. So, the solid has or liquid has one specific heat, whereas in case of gas, it has two specific heats. You know, specific heat at constant pressure, Cp, and specific heat at constant volume. তাহলে Cp will be 1 by m into dq by dt with P as constant, and for 1 gram mole or 1 that is Cp is equal to m is equal to 1, that is Cp is equal to खाली dq by dt with P as constant. Similarly, Cv is equal to 1 by m dq by dt with V as constant. For m is equal to 1, the Cv is equal to dq by dt with V as constant. Then I will tell you regarding thermodynamics, because time is short. So, just I will tell you regarding 5 minutes for regarding thermodynamics. Thermo means heat, dynamics in motion, heat in motion. So, that is thermodynamics, that is a branch of physics which deals with processes involving heat and work and internal energy, conversion of heat and work and internal energy. That is a branch of physics dealing with processes involving heat, work and internal energy. And in thermodynamics, we study the average behavior of the system. In thermodynamics, we study the average behavior of the system. Average behavior means that is we study the macroscopic behavior. Macroscopic. Microscopy is a detailed study of individual atoms or molecules. But here we study the average behavior of all molecules. That is the macroscopic. And what is internal energy? We have
We know what is heat. Heat is a form of energy, and when heat is given to a substance, so it does some work. Work is the product of force and displacement in the direction of force. And then you do not know what is internal energy, so I will explain you what is internal energy. Internal means inside. What is the energy contained within the body itself? Internal energy is the energy contained within the body itself. And the total sum of sum total of kinetic and potential energy देखा जाए ना देखा जाएगा kinetic and potential energy of atoms and molecules of the system is called internal energy. Of the system. System रा kinetic energy कहते potential energy कहते दीटा मिसेले, so that is the internal energy of the system. In case of solid, internal energy is fully potential in nature. In case of solid, internal energy is fully potential in nature. कहीं ना मॉलिक्यूल सॉलिड केस रे मॉलिक्यूल गुड़ा बहुत पाखापाखि रही था तेणु देयर बाइंडिंग फोर्स इज वेरी लार्ज तेणु मॉलिक्यूल मूवमेंट हुए नहीं मॉलिक्यूल मूवमेंट ना काइनेटिक एनर्जी कौन मूवमेंट हेले ही काइनेटिक एनर्जी आसो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भि स्क्वायर वेलोसिटी थिले ही काइनेटिक एनर्जी आसो तेणु जेहेतु सॉलिड केस रे मॉलिक्यूल भितर डिस्टेंस बहुत कम तेणु दे आर बाउंड टुगेदर विथ ए वेरी लार्ज फोर्स सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स तेणु काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो तेणु internal energy is fully potential in nature. Similarly, but in case of liquids, intermolecular distance टिके बढ़ी जाए तेणु potential energy थाए ता संगे संगे kinetic energy मध्य थाए. So in case of liquids, the internal energy is partly potential and partly kinetic in nature. किंतु इन केस ऑफ गैस रे कौन हुए ना मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत बढ़ी जाए तेणु पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट जीरो. In case of gases, molecules are almost free. Molecules are almost
free. ତେଣୁ internal energy is fully kinetic in nature. Oh, thank you.